good morning children. Welcome to SST class. I am Aishwarya Singh. Today we are going to study about few more topics of chapter 2 of geography. Okay, in previous video we have discussed about the planets and the sun. In this video we will go through some few more topics related to this chapter. The first topic we have in this chapter, the satellites. What do you mean by satellites? You must have heard these words in your previous classes. So satellite means what? We can say satellite is act as an attendant or a companion. Companion of whose? Planets. Planets के ये attendant या companion कहलाते हैं, जो planets के साथ रहे. They are heavenly bodies which act as an attendant or a companion of planets. Till 1610, the moon was the only planet, the natural satellite that was known till 1610. Now, till now, there are 205 natural satellites are known to us. Okay. There are only 2 planets in the solar system, as we discussed in previous video. All the planets have natural satellites, they have their moons. Only 2 planets which do not have any kind of natural satellites. Though they are Mercury and Venus. They don't have any moon. Okay, they don't have any natural satellite, or we can say. Now the rotation, like the movement of the satellite, how they rotate. They rotate like the planets rotate from west to east. The movement of the satellites, or you can say the moon, is from west to east like the planets. The satellite do not have their own light. So how? They don't have their own light. They just reflect the light of the sun. The light which falls on the natural satellite or the moon, you can see, they just reflect the light of the sun. Okay. Now come to the next topic, that is moon. Moon is the natural satellite, okay, of the earth, and it is very closest to the earth. Like moon is the closest, is the heavenly body that is closest to the earth. बाकी सारे से ये सबसे closest है, okay, to the earth. And the average distance of the moon is 3,84,400 km from the earth. Okay, and it appears brighter, larger because it is very close to the earth, and it looks brighter than other celestial bodies due to the it is very close to the earth, and it seems very brighter due to it reflect the light of the sun. Yes, and the reflected light of the moon, the light which reflect the moon जो light reflect करता है of the sun, that reaches to the earth. Earth तक आने में कितने समय लगेगा? 1.3 seconds. Okay, how much time it take? 1.3 seconds. And the moon, there is no life on the moon. Why is it so? Why there is no life on the moon? Because of the due to the lackness of atmosphere. Like we have the atmosphere around the earth, but there is no atmosphere around the moon, and there is no and because of absence of atmosphere, air, no life can be exist, because living beings needs air to live. Okay, some more features we will of moon are, and there is no sound. As you know, air travels in sound travel in air, and due to the absence of atmosphere, there is no air, so there is no sound over on the moon. Okay, the moon rotates on its axis, okay, as well as it revolves around the earth. Okay, and the feature of like the duration of rotation and revolution is exactly the same of the moon. Okay, rotation भी जितनी देर में वो rotate कर रहा है, about 28 to 29 days, the same time it revolves. The revolution में भी the same time it takes. Means we can say
कि द मून रोटेट ऑन इट्स एक्सिस रिवॉल्व अराउंड द सन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड एग्जैक्टली टेक्स इज द सेम, द टाइम पीरियड ऑफ द रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ऑफ द मून इज द same. Okay, and that's why we always face the we always see the same portion of the moon from the earth. Because why is it so? Because ये rotation में जितना time लगा रहे, the same time it takes in revolution, revolve around the earth. Okay, and the two American that landed on the moon were the Neil Armstrong and Edwin Aldrin. They just landed on the moon on 21st July 1969. Okay, now come to the next topic, that is phases of the moon. It is very important topic, phases of moon. As we know that the moon reflects the light of the sun. Okay, they don't have their own light, it just reflects the sun. But when you will see the moon, the visible shape is changing every night. Every night we see the shape moon का change होते रहता है. Why is it so? Yes, you can say the first in its journey, the whole duration takes about 1 month. So in its journey from new moon to full moon, new moon के दिन बिल्कुल we can't see the moon, हम मून को नहीं देख पाते. ओके, फ्रॉम न्यू मून टू फुल मून, और फुल मून तक जाते जाते धीरे धीरे द साइज इज इंक्रीजिंग एवरी नाइट. तो इन इट्स जर्नी फ्रॉम न्यू मून टू फुल मून द विजिबल पोर्शंस इंक्रीजेज एंड जो भी दिखाई दे रहा है द विजिबल पोर्शन ऑफ द मून इज इंक्रीजेज एंड इट इज सेड टू मून इज सेड टू बी वैक्स. ओके, मून को क्या करें, ये वैक्स हो रहा है. ओके, इन इट्स जर्नी फ्रॉम फुल मून टू न्यू मून, अब है कि फुल मून से, इन हिंदी वी कैन से द फुल मून एज अ पूर्णिमा. तो फुल मून से न्यू मून तक जाते जाते द साइज ऑफ द मून इज डिक्रीजिंग एवरी नाइट एंड इट इज सेड टू बी लाइक मून इज सेड टू बी वेन, वो घट रहा है. द साइज, द विजिबल पोर्शन इज डिक्रीजिंग एवरी नाइट, हर दिन वो घटते जा रहा है. तो फ्रॉम न्यू मून टू फुल मून वैक्सिंग, this process is waxing, and from full moon to new moon, that is waning. The waxing and waning of the moon, and this waxing and waning of the moon is known as the phases of the moon. You can say the waxing and waning of the moon is said to be phases of the moon. In fact, what happened? The moon is always half lit. मीन्स हमेशा क्या होता है, मून ड्यू टू इज स्फेरिकल शेप, मून चूंकि स्फेरिकल शेप है तो हाफ पोर्शन गेट द सनलाइट जस्ट द अर्थ गेट्स एट द सेम टाइम. अर्थ में आधी दुनिया में दिन, आधी दुनिया में रात, बिकॉज हाफ पोर्शन को लाइट मिल रहा है एंड हाफ पोर्शन को नहीं मिल रहा है. तो मून को भी इन द सेम वे, मून के साथ भी वैसा ही हो रहा है, क्योंकि बिकॉज इट इज ऑल्सो अ स्फेरिकल शेप, इज एन स्फेरिकल शेप. द हाफ पोर्शन इज ऑलवेज लिट एंड द हाफ पोर्शन इज ऑलवेज डार्क. ओके, बट द एंगल ऑफ व्यू, लेकिन हम जिस एंगल से अर्थ से मून को देख रहे हैं इज डिफरेंट फ्रॉम द अर्थ कीप चेंजिंग. फिर वो हमेशा चेंज होते रहता है. हम डिपेंड, मून का दिखना फ्रॉम द अर्थ, द पोर्शन ऑफ द मून दैट इज विजिबल फ्रॉम द अर्थ, उसके एंगल में चेंजिंग आते रहता है. मून कभी घटता या बढ़ता नहीं है, वी से कि घटता बढ़ता. एक्चुअली द पोर्शन, द विजिबल पोर्शन दैट इज सीन फ्रॉम द अर्थ, उसमें चेंजिंग आ रहा है, एंगल में चेंजिंग आ रहा है कि हम किस एंगल से मून को देख रहे हैं. एक्चुअली में क्या है, द मून इज ऑलवेज हाफ लिट, हमेशा मून के हाफ पोर्शन में लाइट है एंड द अदर हाफ इज डार्क. ओके, बट हम किस पोजीशन पे अर्थ पे हैं और किस पोजीशन पे मून है, इसके एंगल देखने, अर्थ से मून को हम कितना देख पा रहे हैं, द विजिबल पोर्शन ऑफ द मून, दैट इज कॉल्ड द फेजेस ऑफ मून. वही इट सीम्स जैसे मून घट रहा है या बढ़ रहा है. एक्चुअली कितने पोर्शन में, मून के कितने पोर्शन में लाइट हम देख पा रहे हैं. सपोज दैट इतने पोर्शन दिख रहा है और इतना डार्क है, मून तो पूरा है बट इतने पोर्शन हम, सपोज दिस इज अर्थ, और अर्थ से हम मून को इतना ही देख पाए, इतने विजिबल पोर्शन को देख पाए, इट मीन्स इतने पे लाइट यहाँ से दिख रहा है हमें. फिर कोई इसी रिवॉल्यूशन में, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द मून, अब वो घूमते घूमते कभी कभी फिर यहाँ अब इतने पोर्शन पे लाइट हमें दिख रहा है फ्रॉम द अर्थ. एंगल
इट ऐसा क्यों हो रहा है कि हम किस एंगल से, इट डिपेंड्स कि किस एंगल से, व्यू ऑफ एंगल, हम किस एंगल से मून को देख रहे हैं, अर्थ से, ओके, मून को, तो वो हमें दिखाई दे रहा है, दैट पोर्शन, ओके। सन के लाइट से कितना पोर्शन लिट हो रहा है एंड द एंगल फ्रॉम द अर्थ, वो इस कारण हमें समझ में आ रहा है कि ये कितना, एक्चुअली में हाफ पोर्शन क्या हमेशा लिट होगा, हमेशा अदर हाफ पोर्शन इज डार्क, लेकिन हमें क्यों ये छोटा बड़ा दिख रहा है, कभी पूरा लिट दिख रहा है, फुल मून के दिन पूरा लिट, मतलब ये इस पोर्शन में पूरा लाइट आ रहा है और हमारा एंगल इस जगह पे अर्थ है, ठीक है, रिवॉल्यूशन रोटेशन में, कि हमें ये मून जो है का पूरा जो हाफ पोर्शन लिट है वो दिख रहा है, और हाफ पोर्शन, और न्यू मून के दिन ठीक उसका उल्टा, हमें वो पोर्शन दिख रहा है जिसमें बिल्कुल भी लाइट नहीं आ रही है सन की, उसके अपोजिट साइड में लाइट आ रही है। तो जो हमें कौन सा पोर्शन मून का दिख रहा है जिसमें बिल्कुल लाइट नहीं है, तो उस दिन हम न्यू मून कह रहे हैं। और जिस रात पूरी पोर्शन को लाइट है, जो पार्ट लाइट में है वो पार्ट अगर हमें दिख रहा है तो वो फुल मून कहला रहा है। तो मून कभी घट या बढ़ नहीं रहा है, एक्चुअली द एंगल ऑफ व्यू फ्रॉम द अर्थ ये चेंज हो रहा है, ओके, कीप चेंज। तो जितना हम दिख रहे हैं, जितना पोर्शन हमें अर्थ से दिखाई दे रहा है उतना हम मून को देख पा रहे हैं। कभी ज्यादा पोर्शन दिख रहा है तो हाफ मून हो रहा है, कभी क्वार्टर दिख रहा है क्रिसेंट हो रहा है, कभी फुल पार्ट विजिबल दिख रहा है, लिट पार्ट, तो वो फुल मून कहला रहा है। तो एक्चुअली द एंगल ऑफ व्यू फ्रॉम द अर्थ इज कीप चेंजिंग, ओके, दैट्स व्हाई ये फेजेस हमें दिखता है। Yes, now the come to our next topic, that is asteroids. Asteroids are what they are also known as a smaller planet. इनको हम छोटे planets भी कह सकते हैं और planetoids भी कहलाते हैं. The other name of asteroid is planetoids or minor planets. They are the planet-like solid objects found in the solar system. ये भी planet की तरह ही स्मॉल साइज में प्लैनेट्स की तरह ही, दैट्स वाई इनको प्लैनेटॉइड्स भी कहा जाता है और माइनर प्लैनेट्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये लाइक प्लैनेट्स दे आल्सो हैव देयर ओन ऑर्बिट एंड इट रिवॉल्व अराउंड द सन लाइक द प्लैनेट्स। एंड द मेन बेल्ट, सबसे ज्यादा जो मेन बेल्ट जहाँ पे एस्टेरॉइड ज्यादा पाए जाते हैं, दैट इज लाइज बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। मार्स के ऑर्बिट और जुपिटर की ऑर्बिट, सपोज इट यहाँ मार्स, ये जुपिटर, तो इसके बीच में ये मेन बेल्ट पाए जाते हैं। काफी संख्या में एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं, लगभग 250 मिलियंस, ओके, एस्टेरॉइड्स 250 to 600 मिलियंस एस्टेरॉइड पाए जाते हैं बिटवीन द मार्स एंड जुपिटर ऑर्बिट, ओके। Now it is now widely believed that the broken pieces of the asteroids, broken pieces of some planets which probably exploded soon after the birth. ऐसा माना जाता है कि ये कैसे फॉर्म हुए होंगे कि प्लैनेट्स के फॉर्मेशन के टाइम में कुछ एक्सप्लोजन हुआ होगा, उसके कुछ जो टुकड़े हैं वही एस्टेरॉइड के रूप में यूनिवर्स में ऑर्बिट कर रहे हैं, घूम रहे हैं। Now come to the meteors. The next topic we have the meteors. Meteors क्या we can see, कभी कभी क्या होता है, we see the some light in the striking कर रहा है अर्थ में, like night sky में, तो meteors are also known as a shooting star. Shooting star हम बोलते भी कि ये it looks like a टूटता हुआ तारा, but that's why its name it is also known as shooting stars. Actually ये क्या होते हैं meteors, ये रॉक्स होते हैं जो सन के चारों ओर घूमते रहते हैं, छोटे छोटे रॉक्स। बट वेन इट इंटर्स द अर्थ एटमोसफेयर, जब ये अर्थ के एटमोसफेयर में इंटर करते हैं, दे बर्न अप। मोस्ट ऑफ द मेटेरियल्स बर्न अप व्हेन दे इंटर इन द अर्थ एटमोसफेयर, ओके। सम ऑफ देम आर बिग, कुछ बड़े होते हैं, कुछ जल जाते हैं, लगभग जल जाते हैं, मोस्ट ऑफ देम बर्न अप। जो कुछ बढ़ जाते हैं, दे जस्ट कम वो और सरफेस पे आते हैं, एंड देन दैट मेटेरियल्स, दोज मेटेरियल्स नोन एज द मेटेराइट्स, उनको मेटेराइट्स बोलते हैं। एक वेल नोन मेटेरियल्स क्रैटर है, दैट इज इन द एरिजोना स्टेट इन यूएसए, ओके, यस। और द प्रेजेंस ऑफ मेटेरियल्स इन द स्काई ओनली नोन, जब वो तभी हमें समझ में दिखाई देगा या हमें ऑब्जर्व होता है इन द, जब दे इंटर इन द एटमोसफेयर। ऐसे तो बहुत सारे, बट जब इंटर करते हैं एटमोसफेयर में, देन it burns, it glows, and it seems to be like shooting stars, okay. Now come to the next topic, we have the comets.
कमेट्स, इट इज बिलीव दैट अबाउट 200 करोड़ कमेट्स ऑर्बिटिंग द सन. ऐसा माना जाता है लगभग 200 करोड़ कमेट जो है वो सन के चारों ओर है. ये भी लाइक एस्ट्रॉइड्स, इनके पास भी दे ऑल्सो हैव देयर ओन ऑर्बिट. ये अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं सन के चारों तरफ. ओके, व्हेन कमेट्स रीचेस नियर द सन, जब ये सन के नजदीक जाते हैं, ओके, एक्चुअली वे होते क्या है, लम्प आइसी क्रिस्टल्स. ओके, दे कमेट्स आर ह्यूज लम्प्स ऑफ स्नो and rocky dust. Okay, each comet follow its own orbit around the sun. When comets reaches near the sun, they started glowing and develop a tail. जब वो अर्थ के सन के नजदीक जाते हैं तो फिर वो ग्लो करना स्टार्ट करते हैं. एक्चुअली आइसी क्रिस्टल होते हैं रॉक टाइप के, और एक वो ग्लो करना स्टार्ट करते हैं. एक टेल लाइक दिस, ये एक टेल बना लेते हैं. ओके, दिस शाइनिंग साइन कर रहे हैं तो ये टेल बना लेते हैं. It's appears the glowing and develop a long tail. सबसे फेमस, द मोस्ट फेमस कॉमेट इज द हेलीज कॉमेट. ये कब दिखा गया था? इट वॉज सीन इन 1986, और अब माना जाता है कि ये फिर दोबारा अपीयर कब होगा? आफ्टर 76 ईयर, मीन्स 2062 में. ऐसा माना जाता है ये देखा जाएगा आफ्टर 76 ईयर्स ऑफ 1986 में देखा गया था. अब नेक्स्ट बार इसको देख सकेंगे 2062 में. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, वी हैव द कॉन्स्टेलेशन. Constellations, you must have heard these words. Constellations are what? They are group of stars, bright stars. कैसे? ऐसे stars के ग्रुप को constellation करते हैं, या कुछ जो images form करते हैं. ठीक है. The people of ancient civilization के जो people थे, वो मानते थे कि ये फिगर, ये कैसा देन है, ये जो constellation है एक्चुअली ये फिगर है कोई माइथोलॉजिकल क्रिएचर्स के या एनिमल्स के. ऐसा मानते थे कि ये कोई पीपल हैं. ठीक है, इनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उनका मानना था, ये बिलीव करते थे. द कॉन्स्टेलेशन वाज यूज्ड एज अ गाइड फॉर प्लांटिंग, हार्वेस्टिंग क्रॉप्स एंड स्लॉटरिंग एनिमल्स. ये कॉन्स्टेलेशन को देख के भी वो लोग अपना हार्वेस्टिंग करते थे, प्लांटिंग क्रॉप्स करते थे इनके पोजीशन को देख के. ठीक है. द मोस्ट इजली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशन जो आप इजली देख सकते हो नाइट स्काई में, दैट इज सप्तऋषि. सप्तऋषि मीन्स 7 स्टार्स इसमें है. ठीक है, आप देख सकते हो 4 स्टार्स होंगे लाइक दिस. 4 स्टार्स के ग्रुप को जो सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइजेबल आप कहीं से भी देख सकते हो लाइक दिस. ये 4 स्टार्स ऐसे होंगे, 7 स्टार्स लाइक दिस. ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ये स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर, ये these are the group of 7 stars, Saptarishi. And in ancient time people used to find the north direction through Saptarishi. Saptarishi पहले के टाइम में लोग इनसे डायरेक्शन भी फाइंड आउट करते थे, बिकॉज द पोल स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ. जो पोल स्टार है, जो ब्राइट स्टार है, दैट इज उनका माना था पोल स्टार्स वी नो डैट की नॉर्थ में होता है, तो वो सप्तऋषि से इंडिकेट होता था. कैसे? सप्तऋषि के ठीक जब ये जो टेल है दैट इज 7, इसके ठीक अपोजिट में यहाँ पे कौन सा स्टार होता है? पोल स्टार. तो एंड पोल स्टार लाइज इन द नॉर्थ डायरेक्शन, तो लोग सप्तऋषि के अकॉर्डिंग पोल स्टार को फाइंड आउट करते थे और डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन जानते थे, और बाकी के डायरेक्शन भी नॉर्थ डायरेक्शन के साथ जान जाते थे. Okay, these all about the constellations. Satellites we have discussed. They are the natural satellite, natural things that revolve around the moon. We have the main satellite, natural satellite. Phases of moon. Actually, ये phases of moon क्यों है? The visible portion जो अर्थ से दिखाई दे रहा है, that is because of that. Asteroids, the minor planets, meteors, they are also like rocks, like things that revolve around the sun, and they are also known as the shooting stars. Comets, they are the icy crystal lump of dust that orbit around the sun. And the constellations, they are the group of stars, bright stars, which we see in the night sky. Okay, thank you children. In the next video we will discuss the next chapter. Thank you.